So good morning, all of you. Good morning. Okay. Good morning. बर तुम्हाला पण सर्वांना नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ठीक आहे, चल. नाजा कोबरा, कौन म्हणणार आहे? सानिका. ओके, चलो. आज कौन बोलणार आहे? सानिका प्रधान. सानिका प्रधान. Phylum Porifera, Cycon sky, Fast Spongilla, freshwater sponge, Euspongia bath sponge, Phylum Coelenterata, Phycelia portugismanophore, Adamsia sea anemone, Penatula sea pen, Gorgonia sea pen, Medandina brain coral, Aurelia jellyfish, Obelia poem, Hydra, Phylum Tenophora, Pleurobrachia, Tenoplana, Phylum Platyhelminthes, Tenia tapeworm, Fasciola liver, Planaria regeneration, Phylum Ascalminthus, Ascaris roundworm, Ucherius filarialworm, Ankylostoma hookworm, Phylum Annelida, Nereis dioecious, Peritima earthworm, Hedunaria blood-sucking leech, Phylum Arthropoda, economically important insect, Apis honeybees, Bombyx silkworm, Laxifer lac insect, Vectors, Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever, gregarious pest, locust, living fossil, Lamolus king crab, Phylum Mollusca, Pila apple snail, Pinctada palustre, Sepia cuttlefish, Loligo squared, Octopus devilfish, Aplysia ceare, Dentalium tusset, Chitopuran chiton, Phylum Echinodermata, Asteris starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumarius sea cucumber, Ophiura brittle star, Phylum Hemichordata, Paranoglossus, Saccoglossus, Phylum Chordata, Subphylum Urochordata, Ascidia, Salpa, Doliolum, Subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or long slit, Subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Pentromazan lamprey, Myxine hagfish, class Conjuncthis, Scoliodon dogfish, Priestis sawfish, Cacodon great white shark, Trigon stingray, Torpedo electric ray, class Ostricthis, marine fishes, Exocetus, flying fish, Hippocampus seahorse, freshwater fishes, Labio rohu, Catla curtla, Clarius magur, aquarium fishes, Betta fighting fish, Pterophyllum angelfish, class Amphibia, Buphoto, Rana frog, Hyla frog, Salamandra, Ichthyopus limpless amphibia, class Reptilia, Chelon turtle, Testito tortoise, Camelon tea lizard, Calotus garden lizard, Crocodilus crocodile, alligator, Hemidopterus wall lizard, poisonous snake, Najja cobra, Bangarus crate, Vipera viper, class Aves, Corvus crow, Columba pigeon, Cetaceloparus, Luthio ostrich, Pau peacock, Aptendines penguin, Neophron vulture, class Mammalia, Oviparous mammals, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammal, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camelus camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Balnoptera blue whale, Panther tiger tiger, Panthaleo lion. Thank you. क्या बात है, सानिका एक्सप्रेस, and that is called as the speed and accuracy. Okay, Thank you. that is a combination of speed and accuracy. बहुत ही बढ़िया बेटा. आप कहाँ से हो और आपका स्कूल का नाम क्या है बोल दो. सर औरंगाबाद वरूनच आहे आणि शारदा मंदिर कन्या प्रशाला शाळा आहे. आणि बोर्ड SSC आहे सर. सेमी मराठी सेमी है सर. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सानिका बेटा, गुड लक. ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्प्रेसिव है. देखो सब लोग क्या कह रहे हैं. ओके ओके, कुछ बोलो दोस्तों, कुछ बोलो. ओके, बहुत ही बढ़िया. ओके, मेट्रो झाली औरंगाबाद मध्ये, क्या बात है, मेट्रो चालू झाली म्हणे. बहुत ही बढ़िया बेटा, सानिका एक्सप्रेस, बहुत ही बढ़िया, सुपर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया. कोई बात नाही, धीरज नाही, तिचीच बारी होती बेटा, तुला परवा म्हटलं होतं मी. हा ठीक है, चलो. सो दोस्तों, थैंक यू सानिका of this wonderful revision
of that different type of example belong to different phylum. तो दोस्तों ये डर हमें, ये जो डर है ना, ये डर है मन में, how can we remember these so many example belong to that different type of phyla or classes? तो ये डर हमने रिवीजन से निकाल दिया है। कोई बात नहीं, बात करें दोस्तों कार्डियक साइकिल के बारे में, कंटिन्यू करता हूं कार्डियक साइकिल। और कल बात की थी, दैट इज दोस्तों याद रखो, कल हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट डायस्टॉल की। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, वन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड जिसको हम बोलते हैं दैट इज सिस्टोल, वन कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सिस्टोल, एंड होता है वन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जिसको हम बोलते हैं डायस्टोल। वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों डायस्टोल ऑफ हार्ट। वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, उससे कहते हैं दोस्तों सिस्टोल एंड डायस्टोल। कार्डियक साइकिल ये दोस्तों कार्डियक साइकिल, इसमें तीन इंपॉर्टेंट इवेंट है, तीन इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। ओके, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ तो हमने देखा कि जॉइंट डायस्टोल का क्या कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट इज मीन बाय जॉइंट डायस्टोल? कल ही मैंने बोला आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का इसका मतलब ये है दोस्तों दैट कि ऑल फोर चेंबर्स, इसका मतलब है दोस्तों दैट इज ऑल फोर चेंबर्स आर इन ए रिलैक्स स्टेट। इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑल फोर चेंबर आर इन रिलैक्स स्टेट। all four chambers of heart, all four chambers of heart are in relaxed state, are in relaxed state, relaxed receiving stage में, are in relaxed state। इसे कहते हैं दोस्तों जॉइंट डायस्टोल, इसे बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। तो फिर और क्या क्या है जॉइंट डायस्टोल में? नाउ दोस्तों यहाँ पे और कुछ चीजें है, दैट इज जॉइंट डायस्टोल में तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल जो है दोस्तों, या फिर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, ये ओपन होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। मैंने कल कहा आपको ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जो है, वॉल्स आर ओपन। ये जो वॉल है दोस्तों दे आर ओपन, ये जो वॉल है दे आर ओपन। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल आर ओपन, नंबर वन। नंबर टू है दोस्तों दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल जो होता है, सेमी ल्यूनर वॉल जो है दोस्तों दैट इज पल्मोनरी वॉल एंड एओर्टिक वॉल। कौन से होते हैं? पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट एट द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वॉल that is present at the pulmonary artery, and दोस्तों pulmonary wall and that is aortic wall present at the aorta, aortic wall present at the aorta, pulmonary artery and pulmonary wall and aortic wall are closed, so blood cannot move okay into from the ventricle. Now direction of flow of blood, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने इसको लिख के दिया था, अगर आपने लिखा है तो लिखो मत। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, सो जो ब्लड है वो कैसे फ्लो होता है दोस्तों, याद रखो ये जो इंफीरियर वेना क्या और सुपीरियर वेना क्या और कोरोनरी साइनस है उससे ब्लड इंटर होगा ओके इनटू दोस्तों राइट एट्रियम एंड देन इंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल। नंबर वन पॉइंट कुछ ये है दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड कुछ इस तरीके से है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इज दोस्तों दैट इज ब्लड फ्रॉम, ये भी मैंने कहा था कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये भी याद रखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम दोस्तों, फ्लो फ्रॉम, मैं ये डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा, फ्लो फ्रॉम दैट इज इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा म्हणजे पोस्ट कॅव्हल व्हेन, सुपीरियर वेना केवा म्हणजे प्री कॅव्हल व्हेन and coronary sinus into the right atrium, into the right atrium दोस्तों कहाँ जाएगा ब्लड, कल ही बात की है, into right atrium, blood flows into right atrium,
okay, and then to दोस्तों, then to the, that is right ventricle, then to the right ventricle, ये राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। वैसे ही दोस्तों दैट इज डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द pulmonary veins, okay, enter into the left atrium and then into the left ventricle. Oxygenated blood, okay, flow from दोस्तों, flow from pulmonary vein, from pulmonary veins to the, कहाँ जाएगा, to the दोस्तों left atrium, flow from pulmonary vein to the left atrium, and then to दोस्तों, that is then to the, that is left ventricle, and then to the left ventricle, दिस इज दोस्तों कंसिडर जॉइंट डायस्टॉल। कल इसकी डायग्राम मैंने निकाली, ये क्लियर है? ओके, ये क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है या नहीं? दिस इज, ये कहते हैं दोस्तों जॉइंट स्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल। समझे? आगे बढ़ते हैं, जॉइंट डायस्टॉल होगा। फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आ जाएगा दैट इज एट्रियोल सिस्टोल। एट्रियोल सिस्टोल का कंसेप्ट आ जाएगा, मैं समझाता हूं क्या होता है एट्रियल सिस्टोल। ना ये जो एट्रियोल सिस्टोल क्या है, और एट्रियल सिस्टोल कहते हैं इसे, एट्रियोल नहीं, एट्रियल सिस्टोल। ना होता क्या है एट्रियल सिस्टोल, जरा लक्ष द्या, समजा। आता तुम्हाला समजूनच सांगावं लागेल मला, एट्रिया वेंट्रिकल, ठीक है, काय प्रॉब्लेम है? हाइपोथेटिकल डायग्राम बनूया। इंटर एट्रियल सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वरचं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ये क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिनिश। नॉर्मली क्या है, ये ज्वाइंट डायस्टॉल में है। ये सब क्या है दोस्तों, दे आर इन अ ज्वाइंट डायस्टॉल। ज्वाइंट डायस्टॉल मींस इसमें ऑल द फोर चेंबर आर इन दोस्तों रिलैक्स्ड, ऑल द फोर चेंबर आर इन रिलैक्स्ड। मान लो ये क्या है, ये है दोस्तों, दिस इज एन ओपनिंग ऑफ दोस्तों, ये है ओपनिंग ऑफ कौन सी, सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है, दिस इज एन ओपनिंग ऑफ दोस्तों, व्हिच वन, दिस इज एन ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, दिस इज एन ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, दिस इज एन ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये सभी ओपनिंग है वेन के इनटू द राइट एट्रियम। तो यहाँ से तो ब्लड आ रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे दोस्तों, दिस इज एन ओपनिंग ऑफ दोस्तों, दिस इज एन ओपनिंग ऑफ, मान लो पल्मोनरी वेन, सेकंड पल्मोनरी वेन, थर्ड पल्मोनरी वेन और फोर्थ पल्मोनरी वेन, और दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोस्तों मान लो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये जो है इंफीरियर वेना केवा, ये है सुपीरियर वेना केवा, और ये कोरोनरी साइनस। दिस ब्रिंग्स दोस्तों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड into the right atrium, and from right atrium that deoxygenated blood goes into right ventricle। now ये जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो veins होते हैं, these veins bring about the oxygenated blood into the left atrium, pulmonary veins bring about the oxygenated blood into left atrium, and this oxygenated blood goes to दोस्तों that is left ventricle। ये है joint diastole का condition। now जब SA node stimulate होगा, जब ऐसे नोड स्टिमुलेट होता है दोस्तों, जब ऐसे नोड स्टिमुलेट हो जाएगा तो सिचुएशन क्या है, जब ऐसे नोड स्टिमुलेट होगा तो देयर इज अ
that stimulation or that action potential reaches the atria, so atrial का contraction हो जाएगा. There will be a contraction of atria. There will be दोस्तों contraction of atria. Atria का contraction हो जाएगा और blood flow जो है पहले से यहाँ पे bicuspid tricuspid वाला open है. मान लो दोस्तों यहाँ पे क्या है? Now these are the wall. ये है दोस्तों, मान लो कौन सा wall है ये? These are two semilunar wall. ये जो राइट वेंट्रिकल के पास है इसका नाम है दोस्तों दैट इज पल्मोनरी वॉल और ये क्लोज है. और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो वॉल है which open at the opening of aorta, वो है दोस्तों aortic wall. They are closed. They are closed. Semilunar wall closed है. Now situation कुछ इस तरीके से फिर हो जाता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. मैं आपको समझाता हूँ क्या है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बस यही देखना है. Now what is meant by atrial contraction? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? हम किसे कहेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन? आप समझ लो इस चीज को. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब दोस्तों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब थोड़ा सा छोटा हुआ है, लाइक दिस. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मतलब लाइक दिस, ये ऐसा कुछ है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, ये है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. ये है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, समझ लो. ये है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. एट्रिया छोटा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस दोस्तों? ये है ट्राइकस्पिड वॉल, ये है बाइकस्पिड वॉल, बोथ आर ओपन. ओके, नाउ दिस इज दोस्तों राइट एट्रियम, ये है इंटर एट्रियल सेप्टम और दोस्तों ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. सो राइट एट्रियम के बाद दोस्तों राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ ये क्या है सर? ये है पल्मोनरी वॉल जो कि सेमिल्यूनर वॉल का एक टाइप है और लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है एओर्टिक वॉल. पल्मोनरी वॉल, एओर्टिक वॉल. नाउ इससे क्या होगा दोस्तों? पहले से ही नो डाउट, पहले से ही ये सब तो है, इंफीरियर वेना क्या है, सब है. तो पहले से क्या होगा दोस्तों? मान लो कि ये है सपोज ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना क्यावा. दिस इज एन ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना क्यावा. दिस इज एन ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना क्यावा. ये है कोरोनरी साइनस. ओके, इंफीरियर वेना क्यावा, आईवीसी, सुपीरियर वेना क्यावा, और ये है सीएस, कोरोनरी साइनस. दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह है पल्मोनरी वेन. कितने होते हैं? 4, 1 2 3 और 4. यह है पल्मोनरी वेन. तो ये क्या होगा? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा दोस्तों, इट विल इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो बाय 30%. एमसीक्यू, सभी सिचुएशन वैसे ही है. एट्रिया में क्या होता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा दोस्तों? यहाँ पे जो एसए नोड है, दिस एसए नोड गेट स्टिमुलेटेड. और जब एसए नोड स्टिमुलेट होता है दोस्तों, दिस एसए नोड सेंड अ सिग्नल टू द दोस्तों लेफ्ट एट्रियम और टू द राइट एट्रियम also. It send a signal to left or all over the atria. It send a signal all over the atria and that atria get contracted. It send a signal all over the atria and atria get contracted. और contract भी कैसे हुआ है दोस्तों? कुछ इस तरीके से contract हुआ है. अगर आपको मैं बता दूं तो ये नॉर्मल था. This was the normal. मान लो ये था नॉर्मल, इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ये था नॉर्मल, ऊपर वाला जो डॉट डॉट वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों? इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है, वो क्या है? जो ब्लड फ्लो है दोस्तों, ये बढ़ गया है. कितना? बाय 30%. ब्लड फ्लो है वो बढ़ गया बाय कितना? बाय दोस्तों 30%. ब्लड फ्लो पहले छोटा था, अभी जो ब्लड फ्लो है दोस्तों वो बढ़ गया है by 30% due to atrial contraction. Blood flow is increased 30% by because of atrial contraction. MCQ, atrial contraction की वजह से blood flow बढ़ा है. atrial contraction की वजह से दोस्तों blood flow है वो बढ़ा है. याद रखो, blood flow is increased because of atrial contraction. समझे? पहले कम था और कितने परसेंट से हुआ है? 30%. समझ में आ रहा है नहीं?
समझ में आ रहा है ना? नाउ प्लीज पे अटेंशन. करण जोहर, तुझं नाव बदल अगोदर. तुझं नाव करण जोहर आहे का? करण जोहर आहे का तू? नाव चेंज कर तुझं. का खरंच करण जोहर नाव आहे तुझं? तुझं नाव काय? करण जोहर. तुझं नाव काय? तुझं नाव करण जोहर आहे का? यस ऑर नो? बदल असतं असतं ठीक आहे, नसता 2 मिनिटात तुला रिमूव्ह करून टाकल मी. यस ऑर नो? बदलायला का? हाँ गायब. चलो कोई बात नहीं. सो एट्रियल सिस्टोल, और ये होगा दोस्तों एट्रियल सिस्टोल. तो ये जो है ये है एक्चुअल में एट्रियल सिस्टोल. ये है एक्चुअल में एट्रियल सिस्टोल. नाउ इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं. क्या है एट्रियल सिस्टोल में दोस्तों? एट्रियल सिस्टोल में दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसए नोड. नाउ ये इंपॉर्टेंट है. ये दोस्तों एसए नोड, दिस इज एन एसए नोड है. ये इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, और सॉरी इसका स्टिमुलेशन होगा, एंड द स्टिमुलेशन, द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड ऑल द एट्रिया दैट कॉजेस एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इन, तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाला अभी भी ओपन है. सो दोस्तों दिस इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल बाय 30%. सिंपल सी बात है, ये क्लियर है? आगे जाते हैं. सो दोस्तों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? सिंपल सी बात है. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, now cardiac impulse originated or generated in दोस्तों SA node. cardiac impulse जो है, cardiac impulse generated in SA node. cardiac impulse generated in SA node दोस्तों. SA node spread all over the atria, spread over the both atria, spread over the both atria. दोनों जो है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा. नाउ दोस्तों it lead to L obliquity, it lead to contraction of both atria, it lead to contraction of both atria, it lead to contraction of both atria. कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसे कहते हैं दैट इज नथिंग बट दोस्तों एट्रियल सिस्टोल. इसी को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल. इट इज नथिंग बट एट्रियल सिस्टोल. इसी को कहते हैं दोस्तों एट्रियल सिस्टोल. एंड नाउ ये जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल सिस्टोल, इसी को तो बात करें दोस्तों एट्रियल सिस्टोल, दैट लीड टू द एट्रियल सिस्टोल. याद रखो. एट्रियल सिस्टोल, यानी उसकी वजह से दोस्तों एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो ओके इनटू द वेंट्रिकल बाय 30%. ये लाइन है, नोट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नोट है दोस्तों. दैट इज एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल increases blood flow into the ventricle, increases blood flow into ventricle. पहले से ही ब्लड फ्लो हो रहा था बट अभी इसने इंक्रीज किया. एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेस ब्लड फ्लो into the ventricle दोस्तों, into the ventricle by about 30%. ये क्वेश्चन है दोस्तों. by about 30% एमसीक्यू, by about 30% एमसीक्यू. ये हो गया एट्रियल सिस्टोल. नाउ दोस्तों फिर क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. मैं समझाता हूं ये क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये जो वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकल पड़ी है एसए नोड से, दैट गोज टू एवी नोड, and from AV node via bundle of His, via AV bundle, and then Purkinje fiber, it spread all over the ventricle, and ventricle start contraction or ventricle start contracting. So there is a beginning of ventricular systole, और फिर बाद में ventricular systole कंप्लीट भी होता है. मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है. नाउ प्लीज पे अटेंशन. यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जस्ट पे ओके.
हे लिहायचे का बेटा? नाही, मी तुम्हाला पाठवतोय, सध्या लिहायचं नाहीये, मी पाठवतोय तुम्हाला, लिहायचं नाहीये सध्या. नाउ प्लीज पे अटेन्शन. जरा लक्षात है. नाउ दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल जो होता है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, इसको जो टाइम लगता है दोस्तों, वो है दैट इज 0.1 सेकेंड. वो है 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड. एमसीक्यू. नाउ बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ना वेंट्रिकल के पास जाते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसके अलग अलग है. फिर आगे वाले फेज क्या है, तो 4 इसमें डिवाइड करता हूं मैं. दैट इज बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन. हे काय असते बघूया. पुन्हा बघूया कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तिथं काय होतं. पुन्हा बघूया बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, आणि पुन्हा बघूया दॅट इज अ कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल. आता प्रश्न असा आहे, आता तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला एक काढून दाखवतो, जस्ट वेट. सपोज मान लो दोस्तों, सपोज क्या है, नाउ दिस इज 4 स्टेज है वेंट्रिकुलर के सिस्टोल और डायस्टोल के, दैट इज कंप्लीट. ये बड़ा होता है कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या सिचुएशन होगी, कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, ब्लड कहां से कहां जाएगा. फिर दोस्तों और एक चीज है, दैट इज बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल मीन्स रिलैक्सेशन उसका, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल या रिलैक्सेशन. और फिर बाद में दोस्तों बात करेंगे दैट इज completion of that is ventricular diastole, completion of ventricular diastole, completion of ventricular diastole, completion of ventricular diastole. कैसे, beginning of ventricular systole, complete ventricular systole, beginning of ventricular diastole और completion of ventricular diastole. आता जरा लक्ष द्या, आता जरा लक्ष द्या. आता काय कॉन्सेप्ट आहे जरा समजून घ्या, समझून सांगतो तुम्हाला बेसिक गोष्ट. ना मान लो दोस्तों ये है सिमेट्री बघा. सपोज मान लो ये है एट्रियम, ये है एट्रियम, और मान लो दोस्तों ये है वेंट्रिकल. ओके, ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल. एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये.
इंटरएट्रियल सिम्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सिम्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सिम्टम मान लो दोस्तों ये है, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जरा लक्ष्य है, ये पूरे जॉइंट डायस्टल में, पूरे जॉइंट डायस्टल में। फिर आएगा एट्रियल सिस्टोल। नो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस कुछ इस तरीके का है। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस कुछ इस तरीके का है दोस्तों। मान लो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन हुआ है ऐसा, ये वेंट्रिकुलर, ये है बिगिनिंग, दिस इज एन बिगिनिंग, और ये हो गया मान लो इसका कंप्लीशन। ये हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ, ये कॉन्सेप्ट है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये मान लो ये हो गया उसका कंप्लीशन। ये ऐसा मान लो यहाँ पे है वेंट्रिकल, ओके, ये ऐसा मान लेते ये है वेंट्रिकल, बड़े है। सो दोस्तों देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, और इस बिगिनिंग में दोस्तों हम इसको यहाँ पे जाके रखते हैं, तो ये हो गया दोस्तों मान लो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझे? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ प्लीज पे अटेंशन, समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो हमें हमेशा लगेगा कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन मेरा वीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। मैं आपको समझाता हूं क्या होगा। नाउ दोस्तों ये है एट्रिया, मान लो ये है एट्रिया, ओके, ये है वेंट्रिकल्स, ये है दोस्तों इंटर एट्रियल सेप्टम, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, that is interventricular septum, interatrial septum, tricuspid wall, bicuspid wall, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. So beginning of ventricular systole का मतलब कुछ ऐसा है दोस्तों। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस कुछ ऐसा, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दोस्तों देयर इज अ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो प्रेशर बढ़ता है इसकी वजह से दोस्तों देयर इज अ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाते हैं। अगर नहीं क्लोज हो जाएंगे तो ब्लड विल मूव इनटू द बैक इनटू राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। सो दोस्तों इसे ये कहेंगे, ये जो टॉपिक है दिस इज द beginning of, there is a concept of beginning of ventricular systole, beginning of ventricular systole। जैसे ही ventricular systole शुरू हो जाएगा दोस्तों, शुरू हो जाएगा, एक important event will occur and that is a closure of bicuspid and tricuspid। क्या हो जाएगा? closure of दोस्तों AV wall, that is bicuspid and tricuspid wall close हो जाएंगे to prevent backward flow of blood into atria, closure of bicuspid and tricuspid wall। और जब bicuspid और tricuspid wall close हो जाते हैं दोस्तों तो एक आवाज आ जाता है, that is called the first heart sound, उसे कहते हैं लब। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जो साउंड आएंगे लब डब they are occur because of closure of bicuspid and tricuspid wall। लब जो फर्स्ट साउंड आता है ये आएगा क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, फर्स्ट हार्ड साउंड। इट लीड टू दोस्तों, इट लीड टू फर्स्ट हार्ड साउंड, और इसकी वजह से फर्स्ट हार्ड साउंड हमें सुनाई देगा जिसका नाम है, फर्स्ट हार्ड साउंड हमें सुनाई देगा जिसका नाम है दोस्तों लब, जिसका नाम है LUBB लब, LUBB लब। एट द बिगिनिंग, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन दैट लब हार्ट साउंड इज ऑब्टेन्ड, ये चार ऑप्शन रहेंगे, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल और कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आंसर इज बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये हो गया बिगिनिंग, यहां से सिर्फ यहां गया है, मैंने क्या किया, यहां से सिर्फ यहां गया है। सपोज मान लो ये ऐसा था ना दोस्तों,
ये कुछ ऐसा था, मैंने ऐसा निकाला था ना, ओके कुछ ऐसा था, ये यहाँ पे था, तो ये शुरू हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट होके ये चला गया है यहाँ पे, समझे? ये है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? चैप्टर चालू बेटा तेरी, ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, ये क्लियर है दोस्तों। आगे जाते हैं कि हाउ द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑकर। नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ दोस्तों मान लो यहाँ पे है, फिर से राइट एट्रियम, सॉरी ये है एट्रियम, और अभी ये बिगिनिंग हुआ है क्या अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके। नाउ दोस्तों ये है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, इंटरएट्रियल सेप्टम, सॉरी बाइकस्पिड वॉल, ये है दोस्तों दैट इज इंटरएट्रियल सेप्टम, और दोस्तों ये है दैट इज अ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ दोस्तों फिर से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दोस्तों और क्या हुआ है, देयर इज अ क्लोजर ऑफ, देयर इज अ क्लोजर ऑफ, क्या क्लोज हुए हैं? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल अभी क्लोज हुए हैं। नाउ दोस्तों और यहाँ पे मान लो ये है सेमिल्यूनर वॉल, वो भी तो क्लोज थे, यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल भी क्लोज थे दोस्तों, सेमिल्यूनर वॉल भी क्लोज थे, याद रखो। तो दोस्तों जब भी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन, अभी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट वेट। नाउ यहाँ पे दोस्तों मान लो यहाँ पे है, दैट इज दोस्तों यहाँ पे है, these are the semilunar wall, pulmonary wall, and ये है दोस्तों aortic wall, pulmonary wall और aortic wall। नाउ ये जो pulmonary और aortic wall है दोस्तों, नाउ दिस pulmonary और aortic wall अगर मानेंगे, सपोज मान लो ये है pulmonary wall और दोस्तों ये है aortic wall, pulmonary wall और वो है aortic wall। इनिशियली वो क्लोज है, दे आर क्लोज, दे आर क्लोज्ड, ये है क्लोज दोस्तों, ये क्लोज है, दे आर क्लोज्ड, ओके, वो क्लोज है, they are closed, they are closed like here, they are closed दोस्तों, यहाँ पे जैसे क्लोज है वैसे ही क्लोज है। now as soon as ventricle complete their, as soon as ventricle complete their contraction, मान लो ये होगा completion of ventricular contraction, sorry completion of ventricular contraction, ये दोस्तों completion of ventricular contraction आ जाएगा यहाँ पे, completion of ventricular contraction। तो as soon as ventricle complete their contraction, तो दोस्तों फटाक से इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और ये जो दो वॉल है दोस्तों, ये जो दो वॉल है, ओके, ये जो दो वॉल है दोस्तों ये ओपन हो जाएंगे। क्या बात है, ओपनिंग ऑफ दोस्तों, ओपनिंग ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओपनिंग ऑफ दोस्तों, दैट इज बाइकस्पिड, सॉरी aortic एंड पल्मोनरी वॉल। तो मान लो दोस्तों ये क्या हो गया, ये बन गया है राइट वेंट्रिकल हमारा, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो जाएगा दोस्तों एंड एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो जाएगा एंड दैट एंटर इनटू द aorta एज सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो रहे हैं यहाँ पे, एज सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एज सेमिल्यूनर वॉल यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बात करते हैं, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टॉपिक क्या है दोस्तों, कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होता है, यह है कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बात को समझ लो। और कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है दोस्तों, दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल ओपन हो गए हैं,
सेमी ल्यूनार वॉल ओपन होता है। जब भी वॉल ओपन होगे तब कोई आवाज नहीं आएगी, आवाज आती है कोई भी चीज दरवाजा क्लोज होने से। ओके, आवाज आती है क्लोज होने से। सेमी ल्यूनार वॉल आर दोस्तों आर ओपन। और ब्लड कहाँ पे फ्लो हो रहा है? ब्लड विल फ्लो फ्रॉम, ब्लड जो है दोस्तों, ब्लड कहाँ से जाएगा? ब्लड फ्लो इनटू pulmonary artery and aorta, blood flow into pulmonary artery and aorta. कहाँ से? From aorta, from ventricles, from respective ventricles. Are you getting me or not? ये है दोस्तों beginning of ventricular systole और complete ventricular systole. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं? ओके, आफ्टर कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टल, ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टल कंप्लीट हो गया तभी जाके सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो गए और ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे मान लो पल्मोनरी आर्टरी है, मान लो दिस इज एन पल्मोनरी आर्टरी, ये है दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी। और दोस्तों मान लो ये क्या है? मान लो ये है एओर्टा। ये क्या है? एओर्टा। ये है एओर्टा और दोस्तों ये है पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज एन पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है। पल्मोनरी आर्टरी एमसीक्यू, एमसीक्यू समझे या नहीं? समझे ना? नाउ प्लीज पे अटेंशन। और दोस्तों डब साउंड कब आता है बात करेंगे। तो ये दो चीजें हो गई दोस्तों यहाँ पे, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज दैट इज बिगिनिंग ऑफ दोस्तों वेंट्रिकुलर सिस्टल, दूसरा है कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टल। अभी आपको ये बहुत दिक्कत लगेगी, हार्ड लगेगा कि हाउ टू रिमेंबर इट। मींस बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टल में क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल हो रहे, ये याद रखना है। और साउंड आता है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। और कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टल में ये तो वॉल पहले से ही क्लोज है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो रहे। सेमी ल्यूनार वॉल, ये क्या दोस्तों? दीज आर सेमी ल्यूनार वॉल। क्या नाम है उनका? सेमी ल्यूनार वॉल है ये वॉल्स। दीज आर द सेमी ल्यूनार वॉल्स, दीज आर दोस्तों सेमी ल्यूनार वॉल्स, याद रखो। और दोस्तों ये है मान लो दैट इज एवी वॉल्स, म्हणजे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। जैसे कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स है दोस्तों। कौन से? ये वाले, ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, ऊपर वाली। नीचे वाले सेमी ल्यूनार वॉल। नाउ बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टल। और जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों, आप मुझे बोलो वेंट्रिकल की वॉल्यूम कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? आपको क्या दिख रहा है? द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल विल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। आंसर डिक्रीज। तो इसके अंदर का जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ ब्लड, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। वॉल्यूम तो कम हो रही तो प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमने फिजिक्स में सीखा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ने की वजह से खटाकन क्या ओपन हो रहा है? धीरे धीरे पहला प्रेशर बढ़ा तो पहले प्रेशर की वजह से खटकन क्या ओपन हो गए? सॉरी, क्लोज हो गए। क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो गए दोस्तों। प्रेशर की वजह से क्लोज हो सकता है क्या? हो सकता है। और प्रेशर बढ़ा तो फिर ये सेमी ल्यूनार वॉल ओपन हो गए, क्योंकि उनकी मूवमेंट उस तरीके से है, उनकी मूवमेंट इस तरीके से दोस्तों। ये ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसा ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये बाइकस्पिड वॉल है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो प्रेशर बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, प्रेशर बढ़ रहा है, क्लोज हो गए। और दोस्तों ये ऐसे ओपन होते हैं, इसका ओपनिंग ऐसा है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। प्रेशर बढ़ा, धीरे 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 फटाक से ओपन हो गए। समझे? ये बेसिक चीज है, धीरे 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 हम बात करेंगे। नाउ बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल और कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पूरा ब्लड जो भी था दोस्तों, वन स्ट्रोक में, जब भी ऐसा स्ट्रोक हुआ, इन ईच कॉन्ट्रैक्शन एट ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जितना ब्लड बाहर फेंक सकते हैं उसे कहते हैं दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो होता है 70 ml, 70 ml ब्लड बाहर फेंक दिया इन ईच वेंट्रिकल। नाउ फिर धीरे धीरे वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, धीरे धीरे। ये क्यों होगा? क्योंकि पहले तो क्या होगा दोस्तों, एसए नोड से सिग्नल एवी नोड की तरफ आया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट और राइट हेवी बंडल, और फिर परकंज फाइबर, और फिर हो गया दैट इज beginning of ventricular systole. Now concept of, what is the concept of beginning of ventricular diastole?
नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ फिर से मुझे कहां से आना पड़ेगा दोस्तों, मुझे ये सिनारियो आपके सामने रखना पड़ेगा, दैट इज अ कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तभी आपको ये समझेगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन दोस्तों। सपोज ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ ये है ये है इंटर एट्रियल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, ऊपर वाला थीन इंटर एट्रियल सेप्टम थोड़ा सा थीन है। नाउ दोस्तों ये क्या है, ये है राइट एट्रियम, ये क्या है राइट एट्रियम दोस्तों, और ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ ये है दोस्तों ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। नाउ मुझे दिखाना है, और दोस्तों ये जो है यहाँ पे मान लो ये जो है पूरा ये जो है दैट वेंट्रिकल इन ए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में है, वेंट्रिकल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में, इस स्टेट में है वेंट्रिकल, इट इज इन कंप्लीट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जहां पे दोस्तों मान लो ये जो वॉल है दे आर ओपन, ये जो वॉल होते हैं दोस्तों सेमिल्यूनर वॉल, ये कैसे है सेमिल्यूनर वॉल ओपन है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये है दैट इज राइट वेंट्रिकल, और ये है दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लोज क्या है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज है। सो दिस इज कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल से हमें जाना है दोस्तों क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दोस्तों वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, और इसने ब्लड पंप किया है, इसने ब्लड पंप किया है। मान लो ये क्या है दोस्तों, दिस इज एन पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या है दोस्तों, दिस इज एन दैट इज एओर्टा, दिस इज एन एओर्टा। और दोस्तों ये है पल्मोनरी आर्टरी, पीए क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ब्लड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये है कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है दोस्तों, सो वेंट्रिकल रिलैक्स शुरू कर देते हैं, रिलैक्स वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग। ओके, नो प्लीज पे अटेंशन। सिचुएशन कुछ ऐसी है दोस्तों, ये है मान लो एट्रिया, एट्रिया that is interatrial septum, interatrial sorry atrioventricular septum, sorry atrioventricular septum. Now what is this, ये क्या है, tricuspid and bicuspid wall, interventricular septum, interatrial septum, right atrium, right ventricle, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और दोस्तों यहाँ पे जो ओपन है वो है दैट इज ये है मान लो दिस इज एंड दोस्तों सेमील्यूनर वॉल जो कि ओपन है, सेमील्यूनर वॉल जो कि ओपन है दोस्तों, सेमील्यूनर वॉल जो कि ओपन है। नाउ हम बात करें बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो ये जो वेंट्रिकल है दोस्तों, ये जो वेंट्रिकल है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, देयर इज अ क्लोजर ऑफ sorry there is a closure of tricuspid and bicuspid wall, there is a closure of tricuspid and bicuspid। now please pay attention। so दोस्तों यहाँ पे beginning of ventricular systole हो जाएगा, there is a beginning of sorry ventricular diastole। now please pay attention। ये जो ventricle है जैसे ही ये रिलैक्स होना शुरू करेगा ना, जैसे इट स्टार्ट रिलैक्सिंग,
इट स्टार्ट रिलैक्सिंग दोस्तों। ये रिलैक्स होना जैसे शुरू कर देगा ना, जब ये रिलैक्स होना शुरू कर देगा तो अपने आप ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है दोस्तों, दे गेट क्लोज्ड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल गेट क्लोज्ड। एमसीक्यू। ये सॉरी आई एम सो सॉरी, ये सेमील्यूनर वॉल गेट क्लोज्ड। सो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ, क्या टॉपिक है? बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मीन वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट इज सेमील्यूनर वॉल जो है, सेमील्यूनर वॉल वो क्लोज हो जाएंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वॉल्स, सेमील्यूनर वॉल्स आर क्लोज्ड। क्यों? ताकि ये जो अगर सेमील्यूनर वॉल ये रिलैक्स हो रहा है दोस्तों, तो रिलैक्स हो जाएगा तो सेमील्यूनर वॉल जो पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी का ब्लड वापस आ सकता है अगर वो ओपन है। तो दोस्तों सेमील्यूनर वॉल गेट क्लोज्ड, और इसकी वजह से दोस्तों जो साउंड आता है उससे कहते हैं दैट लीड टू सेकंड हार्ट साउंड। दैट लीड टू दोस्तों सेकंड हार्ट साउंड, और उसे कहते हैं डब। सेकंड हार्ट साउंड, और उसे कहते हैं दोस्तों डब। ये आएगा डब। कब कब आ जाएगा ये डब? एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये साउंड आ जाएगा डब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। हमेशा याद रखो, क्लोजर ऑफ जब आएगा, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल लीड टू द सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज डब, एंड क्लोजर ऑफ दैट इज क्लोजर ऑफ bicuspid and tricuspid wall दोस्तों लीड टू दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जब साउंड आता है दोस्तों, हमेशा याद रखो साउंड ऑकर जस्ट बिकॉज ऑफ, मैंने ये दरवाजा है दोस्तों इसको ओपन कर दिया। ओके, ये दरवाजा है मैंने इसको ओपन कर दिया। ओके, ये दरवाजा है मैंने इसको ओपन कर दिया। साउंड आ रहा है? इज देयर एनी साउंड? सपोज ये क्लोज है, सपोज मैंने इसको ओपन कर दिया, कितना ही, इज देयर एनी साउंड? पर जैसे मैं इसे क्लोज करता हूं ये साउंड आता है, जैसे मैं इसे क्लोज करता हूं सीधे से। आ रहा है या नहीं? क्लोजर करने पे साउंड आता है, क्लोजर करने पे साउंड आता है दोस्तों, ओपन करने पे नहीं। समझे? यस और नो? साउंड हमेशा कब आएगा? जब हम क्लोज करेंगे तब साउंड आता है, ओपन करने पे नहीं। दिस इज एन एमसीक्यू, दिस इज एन एमसीक्यू। समझे या नहीं? समझे या नहीं? समझे या नहीं? यस और नो बोलो। तो दोस्तों ये है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये सेमिल्यूनर वॉल और क्लोज एंड सेकंड हार्ट साउंड आएगा डब। नाउ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, कंप्लीशन ऑफ। तो कंप्लीट कैसा कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज मीन बाय कंप्लीशन दोस्तों? सिनारियो कुछ इस तरीके का है, सिनारियो कुछ इस तरीके का है। अभी कंप्लीट थोड़ा सा संयम ठेवा 2 मिनट। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो थिक वॉल है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो थिन वॉल है, और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये ग्रीन वाला। नाउ दोस्तों प्लीज पे अटेंशन, अभी क्या सिचुएशन है? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, सॉरी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है, ये है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, और ये अभी तो क्लोज है, ये तो अभी क्लोज है दोस्तों। नाउ ये है मान लो सेमील्यूनर वॉल, और ये भी क्लोज हो चुके हैं, ये भी दोस्तों क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। तुम्हाला काही कळणार नाही कदाचित काहीच लोकांना काय चाललंय तर, कारण की मी तुकडे तुकडे करून शिकवायले, मला फ्लो मध्ये यायचंय पण मला तुकडे तुकडे करून शिकवायचं हे एमसीक्यू साठी। ओके, ये है दोस्तों राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम दोस्तों, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ ये है बायकस्पिड वॉल, सगळे क्लोज झाला था। आता काय होणार आहे? कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टम होणार है, म्हणजे लाइक दिस कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टम, मतलब ये ऐसा कुछ ऐसा दोस्तों। और जो कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टम हो जाएगा लाइक दिस, अरे सॉरी
कंप्लीट व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉल म्हणजे हे असं असणार आहे, पूर्ण रिलॅक्स होईल. आणि ज्यावेळेस पूर्ण रिलैक्स होईल लाइक दिस, ये जब पूरा रिलैक्स हो जाएगा लाइक दिस दोस्तों, कुछ इस तरीके से, जब ये कुछ इस तरीके से रिलैक्स हो जाएगा तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक सिचुएशन है, यहाँ पे एक सिचुएशन है, ये तो क्लोज ही रहेंगे नो डाउट, पर दोस्तों यहाँ पे ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल होते हैं दे गेट ओपन, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा और दोस्तों फिर से ब्लड विल फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. नाउ अभी चारों के चारों ये जॉइंट डायस्टॉल में आ चुके. सो दोस्तों इट इज completion of और कंप्लीट दोस्तों कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल. और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कंप्लीट झाल्यामुळं काय झाले सांगू तुम्हाला, that is opening of that is tricuspid and bicuspid wall, tricuspid and bicuspid wall ओपन झाले, bicuspid wall ओपन झाले. तुम्ही जस्ट वाचा एकदा रिलॅक्स, bicuspid wall ओपन and blood will flow from atria to ventricle. आता इथं प्रेशर खूप कमी झालं व्हेंट्रिकलचं, मी प्रेशर व्हॉल्यूमच्या भाषेमध्ये बोललोच नाही, मी मेकॅनिकल भाषेमध्ये बोलले, मेकॅनिक्स मध्ये. आणि दोस्तों ब्लड विल फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. आता ह्याला समजायला थोडासा वेळ लागेल, ह्याला निवांत वाचा, विचार करा आणि मग उद्याच्याला आपण बोलूया. ठीक है, हाँ कळतंय, हाँ बोला बेटा. ठीक है, हाँ याचा हळूहळू आपण व्हिडिओ बघूया. I know that Unmesh, just ignore them. I know that, just ignore them. Okay, हमारे पास कीमती समय है ना, तो रुकते हैं. तो ये सभी दोस्तों, ये सभी वीडियो बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं और फिर वीडियो देखेंगे ताकि समझ में आए कि ये क्या चल रहा है. समझ में आए दोस्तों क्या चल रहा है. वीडियो पेशेंस रखो, पेशेंस. इवेंट को पहले ध्यान में ले लो, क्या हुआ है इवेंट. कार्डियक साइकिल की बात करें दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल होता है. जॉइंट डायस्टोल मींस ऑल फोर चेंबर ऑफ हार्ट इन रिलैक्स स्टेट. यहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल और ओपन, सेमिलुनर वॉल जो होते हैं दोस्तों दैट इज पल्मोनरी वॉल और aortic वॉल दे आर क्लोज्ड. तो इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल होगा, नो डाउट. फिर एट्रियल सिस्टोल मैंने कहा क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एट्रियल सिस्टोल में एक एमसी के 30% इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, 30% इंक्रीज इन ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. बस इतना ही याद रखो, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, एट्रियल सिस्टोल. फिर दोस्तों हमने देखा कि क्या होता है, कार्डियक इंपल्स आर जनरेटेड बाय एसए नोड दैट स्प्रेड ओवर द बोथ एट्रिया दैट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेस ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल बाय 30%, ड्यूरेशन है 0.1 सेकंड. फिर हमने देखा दोस्तों बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये कैसे होता है, जो एसएन बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल का कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं आपको कि ये है, मान लो दोस्तों दैट इज एसए नोड. तो नाउ ऐसे ये है एवी नोड, तो एवी नोड से दोस्तों मान लो ये बंडल ऑफ हीस है और यहाँ पे राइट एवी बंडल, लेफ्ट एवी बंडल, और दोस्तों मान लो यहाँ पे ऐसे परकंज फाइबर है, यहाँ पे मान लो पूरे वेंट्रिकल पे क्या है, ऐसे परकंज फाइबर है. तो इसकी वजह से क्या होता है, ये परकंज फाइबर की वजह से दैट वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड ओवर द वेंट्रिकल, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग रहा है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोस्तों, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है. ओके, तो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन हो जाएगा दोस्तों देयर इज अ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, फर्स्ट आउट साउंड आ जाएगा लब. और फिर दोस्तों कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल तब क्या हो जाएंगे, देयर इज अ ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल ओपन्स एंड ब्लड फ्लो इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta फ्रॉम वेंट्रिकल. फिर हमने देखा दोस्तों बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सेमिलुनर वॉल आर क्लोज्ड
second heart sound, that is dub, and complete ventricular diastole, opening of tricuspid and bicuspid wall, blood will flow from atria to ventricle. इसको मैं एक फ्लो में लेता हूं, पहले आप ये इवेंट समझ लो, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू सो मच. वापरू शकतो बेटा, पर अनिकेत वापरू शकतो, पण इट्स व्हेरी लक्षात राहील हळूहळू. वापरू शकतो, TRP वापरू शकतो ना, वापरू शकतो, ठीक आहे? उद्याच्याला लेक्चर नाहीयेत, उद्याच्याला लेक्चर नाही, उद्याच्याला संडेला तर सुट्टीच आहे, आणि सोमवारी मला वाटते काय आहे, पतिथी आहे सोमवारी, पारशी पतिथी नाही, पर पारशी नूतन वर्षे, पतिथी नाही सॉरी, पारशी नूतन वर्षे मंडेला, तर आपण सुट्टी देणार आहोत, ठीक आहे? उद्या संडे तुमचे पेपर होईल मात्र संडेला, पतिथी 15 ऑगस्टलाच आहे, ठीक आहे? तर सॅटर्डे संडे आणि मंडे हे 3 दिवस सुट्टी असणार आहे. सॅटर्डे संडे आणि मंडे हे 3 दिवस सुट्टी असणार आहे, ठीक आहे? तर चांगला अभ्यास करा, सेल्फ स्टडी करा व्यवस्थित, ठीक आहे? चलो, ठीक आहे? हळूहळू हे लक्षात येईल, फक्त वाचत राहा मी काय सांगितलं. तुम्ही जे मी सांगितलंय आता एवढंच लक्षात ठेवा, व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस जे प्रेशर आहे आतमधलं व्हेंट्रिक्युलर प्रेशर ते वाढतं, आणि ते प्रेशर वाढ झाल्यामुळे सुरुवातीला हे बायकस्पिड वॉल क्लोज होतात आणि नंतर ते ट्रायकस्पिड वॉल ओपन होतात. साऊंड कधी येतो, फर्स्ट अँड सेकंड हार्ट साऊंड कधी येतो, तर ते कधी पण साऊंड त्याच वेळेस होईल, घराचा दरवाजा जोरात आदळला, तुम्ही उघडा किती, जास्त येत नाही, पण आदळला लावताना जास्त आवाज येतो, हे माहिती आहे? हे माहिती आहे? यस, डन. तर फर्स्ट हार्ट साऊंड येतो क्लोजर ऑफ ट्रायकस्पिड अँड बायकस्पिड वॉल. तो कसा असतो, तो लॉंग ड्युरेशनचा आहे, तो लो पिच आहे, आणि तो लब आहे. ट्रिपल एल लक्षात ठेवा, ट्रिपल एल, लॉंग ड्युरेशन अँड लब आणि लो पिच आहे. आणि सेकंड हार्ट साऊंड हा कसा आहे, डब आहे, हाय पिच आहे आणि ऑफ शॉर्ट ड्युरेशन आहे. जसे की लॉंग म्हणजे लब डब ला 0.15 सेकंद आहे, कोणता लब साऊंड, तो 0.1 सेकंदच आहे. ड्युरेशन सांगायचं झालं, लास्ट पॉइंट जर बोलायचं झाला, ड्युरेशन समजा कार्डियक सायकलचं जर ड्युरेशन सांगायचं झालं, तर लक्षात ठेवा हे जे जॉईंट टोटल ड्युरेशन आहे कार्डियक सायकलचं 0.8 सेकंद. लास्ट पॉइंट बोलतो, कार्डियक सायकलचं ड्युरेशन आहे 0.8 सेकंद. किती ड्युरेशन आहे? 0.8 सेकंद. किती ड्युरेशन आहे? 0.8 सेकंद. पण त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघत असताल ॲट्रियल सिस्टॉल आणि व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉलचं वेगळं आहे. याच्यामध्ये जॉईंट डायस्टॉल जे आहे, जॉईंट डायस्टॉल याचं ड्युरेशन असतं, जॉईंट डायस्टॉलचं ड्युरेशन आहे 0.4 सेकंद, हे अर्ध. आणि ॲट्रियल सिस्टॉलचं ड्युरेशन आहे 0.1 सेकंद. ॲट्रियल सिस्टॉल, फक्त ॲट्रियल सिस्टॉल याचं ड्युरेशन आहे 0.1 सेकंद, हे झालं 0.4 सेकंद. आणि व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉलचं ड्युरेशन आहे, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉलचं ड्युरेशन आहे रिमेनिंग 0.3 सेकंद. सर मग व्हेंट्रिक्युलर ॲट्रियल डायस्टॉल कुठे गेला? तो इथं झाला दोन्ही मध्ये, समजते? ड्युरेशन ऑफ कार्डियक सायकल, ड्युरेशन ऑफ कार्डियक सायकल 0.8 सेकंद, म्हणजे 0.1 सेकंदामध्ये एक कार्डियक सायकल होते. तर एका मिनिटामध्ये किती होतील? तर एका मिनिटामध्ये 60 सेकंद आहे, तर 72 कार्डियक सायकल होतात एका मिनिटामध्ये. थांबतो आता. 72 कार्डियक सायकल होतात एका मिनिटामध्ये, लक्षात ठेवा. तो कार्डियक आउटपुट किती असतो? 5 लिटर आहे. एका मिनिटामध्ये ब्लड किती बाहेर पडतं एका व्हेंट्रिकल मधनं? 5 लिटर एका कार्डियक सायकल मध्ये. किंवा एका कार्डियक सायकल किती बाहेर पडतं? 70 ml. त्याला म्हणायचं स्ट्रोक व्हॉल्यूम. आणि आपला हार्ट रेट किती आहे? हार्ट रेट आहे मुलांनो 72. तर हा एक फॉर्म्युला आहे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक व्हॉल्यूम. हे लक्षात ठेवा. हार्ट रेट असतो 72, स्ट्रोक व्हॉल्यूम आहे 70 ml, तर होतं दॅट इज 5040 ml. हे कार्डियक आउटपुट आहे. कार्डियक आउटपुट म्हणजे काय? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट, इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट. और वो होता है दोस्तों नियरली 5 लीटर.
5 लीटर। ठीक है, रुकते हैं आज के लिए, कल मैं इसे डिटेल में बात करूँ। कल मीन्स जब भी 15 ऑगस्टला पेपर असणार आहे का, संडेला। हे येणार टेस्ट मध्ये, जेवढं काय चालू आहे तेवढं। ठीक आहे, इथपर्यंत सगळं येणार, अप टू कार्डियक सायकल, आणि तिकडं कॉर्डेटाचं जे सुरू होईल तेवढं। ठीक आहे, चला। नाही होणार अभिजित वाघोरे, नाही होणार बेटा, टेन्शन नका घेऊ, आज क्लिअर नाही होणार, कदाचित त्याचे 2 MCQ पण येणार नाही तुम्हाला टेस्ट मध्ये। पण ज्यावेळेस मी फ्लो मध्ये बोलायला लागल सगळं, मी तुम्हाला फक्त हे लिहिणं गरजेचं आहे। मी तर काय डायग्राम सहित लिहिलंय, ह्याला प्रॉपर लिहिणं गरजेचं आहे। एक फ्लो मध्ये सांगणं, हे झालं की हे झालं की हे। आता हे काय आहे तुम्हाला सांगू का, आलं लक्षात? कार्डियक सायकल म्हणजे काय माहिती आहे का? कार्डियक सायकल इज लाईक दिस, हात वरी माझा, हात खाली, लाईक दिस। चला सांगा, कुठला हात खाली वरी व्हायला लागला? ओके, कोणता हात खाली वरी व्हायला लागला? इट इज कार्डियक सायकल। ओके, ये ऐसा कार्डियक साइकिल है। 3-4 चीजें देखना है, मेरे मूवमेंट ऑफ हेड भी देखना है और मेरे मूवमेंट ऑफ हैंड भी देखना है। तो कंफ्यूज होता है आदमी शुरू में, क्या हो रहा है, तो रुकना पड़ेगा ना। रुकू क्या? तो जब मेरी जो नेक की मूवमेंट है, जब लेफ्ट साइड को हो रही है तो मेरा लेफ्ट हैंड नीचे है और राइट हैंड ऊपर है, और जब मेरी, तो ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा ना, और जब मेरी नेक की मूवमेंट राइट साइड को हो रही है तो मेरा राइट हैंड ऊपर है, और मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है और राइट हैंड नीचे है। अब बोलो, पढ़ो। ये अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाता शुरू में, बोलो क्या हो रहा है, बोलो, तो बहुत कुछ लोगों को ही, बहुत ही कम लोगों को समझ में आ जाता कि क्या हो रहा है। ओके, व्हेन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ हैंड एंड नेक, पर मैंने कैसे पढ़ाया है, इस तरीके से, जब मेरा नेक राइट साइड पे है तो मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है, और मेरा नेक जब लेफ्ट साइड पे है तो मेरा राइट हैंड ऊपर है। जैसे जब तक आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, और फिर मैं जिस दिन लेक्चर होगा उस दिन मैं ये ऐसे पढ़ाऊंगा, ये ऐसा होता है, समझे? ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, समझे? तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टुकड़ों में पढ़ाया आपको। हाँ, दोनों लेक्चरला सुट्टी आहे। ठीक है, चलो रुकते हैं आज के लिए। ठीक है, आज डीपीपी असणारे कार्डियक साइकिल वर, आज डीपीपी कार्डियक साइकिल के ऊपर होगी, ये सब आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, देखो क्या होता है। ठीक है, 15 ऑगस्टला पण सुट्टी, त्या दिवशी संडेच आहे। ठीक है, चलो।